Hello guys, today we will learn how we can create series using array. So first we will see what is array. So student, array is a kind of data structure. So array is a data structure that can store a fixed size sequential collection of element of the same data type. It means it contain only same data type value. An array is used to store a collection of data. We can store multiple data in a sequential manner. An array consists of two things. So student, array consists of two things. First, element and index. So what is element? Each item stored in an array is called element. Whatever we are storing in array, these value and data are called an element. Is it clear? Now next is index. Each location of an element which is used to identify the element, and location of our element is called index. It is clear? Now types of array. The NumPy array can be handled and divided into two types, single dimension array and multi-dimension array. So student, array कितने प्रकार के होते हैं? Array two types के होते हैं, single dimension array and multi-dimensional array. Let's first see what is single dimensional and one dimensional array. So one dimension array, it is also known as a vector. The number of index determines the dimensional of the array. An array of one dimension is known as a one dimensional array or 1D array. So student, one dimensional array आपका क्या हुआ? One dimensional array वह array होता है जिसे वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर आपकी सिंगल रो होती है और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर डेटा सीक्वेंशियली अरेंज होता है. अब स्टूडेंट, बात आती है कि इसे वन डायमेंशनल क्यों कहते हैं. अब वन डायमेंशनल इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर एन एरे ऑफ वन डायमेंशन इज नोन एज ए वन डायमेंशनल एरे और 1D एरे. इस डायग्राम के अंदर अपन समझ सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कैसी है. हम इसके केवल एक ही पार्ट को अपन देख पा रहे हैं. देखिए इसकी कौन सी डायमेंशन है, केवल एक सिंगल डायमेंशन एरे है और इस सिंगल डायमेंशन के अंदर सामने ही आपको क्या दिख रहे हैं, आपका डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसलिए इसे किसी क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे के अंदर आपकी क्या होती है, आपके मल्टीपल तो कॉलम होते हैं और आपकी सिंगल रो होती है. जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, ये आपके वन डायमेंशनल एरे या जो भी एरे आपका होता है दैट स्टोर एलिमेंट एंड इंडेक्स. सो व्हेन वी स्टोर आवर डेटा इन एन एरे देन इट विल स्टोर अलोंग विथ इट्स index number. Suppose we are starting here, we insert a data 2, then it will store index number 0. Then after it will store next item, it will be stored along with its index number. So 28760, it's our element. Also we can say it's our data. And 0 1 2 3 4, it's index number. Multi-dimensional array. So what is multi-dimensional array? It is also known as matrix. It is also known as matrix. What is matrix? Matrix is a collection of row and column. Two-dimension array is an array within an array. Array within array is called multi-dimensional array. It is an array of array. In this type of array, the position of an data element is referred by two indices instead of one. So referred by two indices, this one and this one. So it represent a table with row and column of data. So student, what is multi dimension array? Multi dimension array वह array होता है
जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि दो या दो से अधिक उसकी क्या होती है, डायमेंशनल होती है, जिसे अपन मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अब मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स जब अपना डेटा होता है तो अपन उस डेटा को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एक टेबल के रूप के अंदर दिखाई देता है। जब टेबल के अंदर दिखाई देता है तो उसके अंदर क्या होंगे, रो एंड कॉलम होंगे, एंड कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स। सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स, यानी कि मल्टी डायमेंशनल के अंदर डेटा हम मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स के अंदर रख सकते हैं। लेट्स सी वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। स्टूडेंट आप इसमें देख रहे हैं ये एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर मल्टीपल रोज एंड वी हैव मल्टीपल कॉलम्स। हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, 1 2 3 and 4 column, and how many rows we have 1 2 3 and 4 row. So it is a matrix of 4 by 4. So how many elements we can insert in this table? 4 into 4 we can insert 16 element in this table. So collection of row and column is called a table and it's a matrix. So how we can insert data in this table through its index value? So student देखिए इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है और रो 4 है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। अब इसकी इंडेक्सेस वैल्यू जो आपकी क्या होगी, इस वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उस वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 रो का आपका 0 कॉलम। रो 1 है लेकिन इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है आपका, 0 से, तो ये क्या हो गया आपका 0 रो का 0 कॉलम, इट्स इंडेक्स वैल्यू। ये क्या हो गया 0 रो का 1 कॉलम, 0 रो का 2 कॉलम और 0 रो का, रो देखो सेम है अपनी, कॉलम अपने क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे 0 रो का आपका 3 कॉलम। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू रहेगी। जब भी इस डेटा को फैच करना होगा यानी कि वैल्यूज को रिट्रीव करना होगा तब हम किसके थ्रू रिट्रीव करते हैं, हम इसकी वैल्यू के थ्रू रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट रो है सेकंड। अब रो आपकी सेकंड है लेकिन इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 हो गया तो ये इंडेक्स क्या कहलाएगा आपका 1, लेकिन कॉलम वापस से क्या हो जाएगा, कॉलम आपका 0 है तो 1 रो का 0 कॉलम, 1 रो का 1 कॉलम, 1 रो का 2 कॉलम और 1 रो का 3 कॉलम। ऐसे ही रो इंक्रीज होगी, 0 इंडेक्स हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2 रो का 0 कॉलम, 2 रो का 1 कॉलम, 2 रो का 2 कॉलम एंड 2 रो का 3 कॉलम। ऐसे ही नेक्स्ट 3 रो का 0 कॉलम, 3 रो का 1 कॉलम, 3 रो का 2 कॉलम एंड 3 रो का 3 कॉलम। इस प्रकार हम मल्टीपल डेटा को रो एंड कॉलम के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे के द्वारा स्टोर करा सकते हैं, यानी कि हम टेबल के अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं थ्रू मल्टी डायमेंशन एरे। अब पाइथन के अंदर इसको किस तरह से पांडास के थ्रू यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम पाइथन के अंदर इस एरे को यूज कर सकते हैं। Now we will see difference between one dimensional array and two dimensional array. So here we are showing one dimensional array element and here we are showing two dimensional array. So first, one dimension array contains single row and multiple column. You can see here we are using a single row and insert multiple elements. Is it clear? So in one dimension array contain single row and multiple column, and two dimension array contain multiple rows and multiple column. You can see here we are using 1 2 3 and 4 row and multiple columns 1 2 3 and 4. So in two dimension array we can use multiple row and multiple column. Next, one dimensional array is a simple collection of element. It is a simple collection of element, and two dimension array is a collection of 1D array. is a collection of 1D array क्यों लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये
इंडिविजुअल एरे विद इन एरे, एक एक को यदि अपन जाने तो ये इंडिविजुअली सिंगल रो क्या है, इससे वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, ए ऑल्सो वन डायमेंशनल एरे, बी रो ऑल्सो वन डायमेंशनल एरे, सी रो इज ऑल्सो वन डायमेंशनल एरे. सो एरे विद इन एन एरे इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? Now student, we will see how we can create pandas series from array. Now we will see what is array. So now we will see how we can create pandas series using array. So you already know when we use pandas, then first we import pandas library. But student, if you want to use array, then also you have to use a library. इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी. सो स्टूडेंट, यदि आपको एरे यूज करना है पांडास के अंदर, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पांडास की numpy लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम numpy पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेंगे. यहां पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने numpy जो लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट कराया है. उसके बाद यहां पे एरे को क्रिएट किया है. अब एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, एरे को क्रिएट करने के लिए एरे नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, जो कि कहां है, आपकी numpy लाइब्रेरी के अंदर. अब इस numpy लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो np.array, यानी कि इस लाइब्रेरी के अंदर ये आपका एरे नाम का फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर वी आर पासिंग ए आर्ग्यूमेंट. विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, वी आर पासिंग ए लिस्ट. इसके अंदर क्या पास किया है, हमने एक लिस्ट पास की है. इस लिस्ट के अंदर क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं. वो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई. और इस एरे को हमने एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करा दिया, इसकी पूरी वैल्यू को अपन ने असाइन करा दिया. अब ये तो बनाया अपन ने, क्या सिर्फ एरे बनाया है यहां पे. अब एरे के थ्रू अपन किस तरीके से सीरीज बना सकते हैं, तो यहां पर दिखाया गया है क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग एरे. पीडी यूज किया है हमने पांडास के लिए, क्योंकि पांडास की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर चुके हैं. तो यहां पे लिखा पीडी, और यू ऑलरेडी नो सीरीज इज ए फंक्शन ऑफ पांडास लाइब्रेरी. सो वी आर यूजिंग ए सीरीज फंक्शन एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट इन दिस सीरीज फंक्शन ए. अब देखिए, इस पांडास जो अपनी लाइब्रेरी है, इसके सीरीज फंक्शन के अंदर, क्योंकि सीरीज बनानी है तो सीरीज फंक्शन को यूज किया, और इस सीरीज फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किए हैं, आर्ग्यूमेंट पास किए हैं हमने पूरे एरे को पास कर दिया. अब देखो, ये पूरा एरे अपन ने जो बनाया था, ये एरे, इस एरे के किसके अंदर इसकी वैल्यू को अपन ने असाइन कर दिया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर. और जब सीरीज बनाई तो सीरीज के अंदर हमने क्या डाल दिया, इस एरे को डाल दिया. अब इस सीरीज को हमने किस में असाइन कर दिया, एक एस नाम के वेरिएबल के अंदर. अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, किसको, एस को. एस जो अपनी क्या है, जिसने सीरीज को बनाया है, और वेरिएबल की जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज किसको लेकर के चल रहा है, ये सीरीज की वैल्यू को. तो अपन एस को प्रिंट कराएंगे. एस को जब अपन प्रिंट कराएंगे तो अपना आउटपुट क्या आएगा, देखो ए बी सी डी एंड ई. हमने सीरीज नहीं बनाई है, हमने क्या बनाया है, हमने एरे बनाया है. वी क्रिएट ओनली एरे एंड वी आर पासिंग इन सीरीज फंक्शन इन दिस एरे. हमने एरे बनाया और एरे के अंदर हमने क्या करा, एक सीरीज बनाई, और सीरीज के अंदर से एरे को हमने पास कर दिया, जिससे क्या बन गया, एरे की एक सीरीज तैयार हो गई. देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं किस प्रकार के हमें इसे यूज किया है. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहां पर हमने सबसे पहले पांडास जो लाइब्रेरी है उसको हमने इंपोर्ट किया है. उसके बाद एरे यूज करना है, तो इसलिए हमने numpy जो लाइब्रेरी है उसको यूज किया है. पांडास के लिए पीडी, और अपन ने numpy के लिए np नेम का यूज किया है. फिर एक एरे क्रिएट किया है, जिसकी एरे की वैल्यू को हमने किसके अंदर लिया है, ए नाम के वेरिएबल में. और एरे जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने एक लिस्ट को पास किया है, जिसके अंदर ए बी सी डी ई वैल्यू को यूज किया है. और उसके बाद पांडास का सीरीज फंक्शन को यूज किया, और हमने इस ए जो एरे है उसको हमने वैल्यू के रूप में पास कर दिया है. जब एस को प्रिंट कराया तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आपका क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4. इट्स ए इंडेक्स वैल्यू एंड योर आइटम्स ए बी सी डी एंड ई.
Also you can see here output 0, 1, 2, 3, 4 your index number, and A, B, C, D it's your elements. Next method is create a series from array with index. If you want to change its index value, then how we can create series using array? So first we will import our pandas library, and also here we are using numpy array, so we include our numpy library. Then after create a array np.array and passing a list with argument a, b, c, d, e value, and assign in this array in a single variable a. Then after in next line we create a series function and passing our array a and assign its index value. Now in this method here we are assign index value, or index value 100, 101, 102, 103 and 104. Then after we are passing here print as our series. Then you can see here is showing its index number 100, 101, 102, 103 and 104, and along with your data. Is it clear? Okay, let's check it. Student, I copied this statement in our Python IDLE. You can see here first I import our pandas library, then import numpy, then create a array, and in next line use series function and passing in this series function this array and print our series. Then run this series. Then you can see here is showing your output. So how we can change its index value in array? Okay guys, thank you so much for watching this video.